Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will learn class 3 EVS chapter number 5 Chotu's house. First we will understand the lesson and then we will learn its questions and answers. Friends, इस वीडियो में हम EVS chapter 5 Chotu's house समझेंगे. पहले हम इस लेसन को समझेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्न और उत्तर सीखेंगे. In this lesson, we will see what are the different parts of our house, how we can keep our house clean and its surroundings. We will also learn the toilet habits and we will see during the festival season how we can decorate our house. So watch the video till the end. इस वीडियो में हम अपने घर के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानेंगे. हम यह भी देखेंगे कि हम अपने घर को किस तरह से साफ रख सकते हैं और इस वीडियो में हम टॉयलेट हैबिट्स और त्यौहार के समय हम अपने घर को किस तरह सजा सकते हैं यह भी देखेंगे. इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स. छोटू's हाउस. Chotu lived in a small village. Many people come to Mumbai to earn money. Similarly, छोटू also came to Mumbai. छोटू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था. जिस तरह बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं पैसा कमाने के लिए, उसी तरह छोटू भी एक दिन मुंबई आ गया. He came to Mumbai for the first time. He did not know anyone in Mumbai and did not have any place to live. छोटू जो है वो पहली बार मुंबई आया था. वो मुंबई में किसी को भी नहीं जानता था और उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी. He spent few days in Mumbai staying here and there. छोटू ने कुछ दिन मुंबई में यहाँ वहाँ रहकर गुजारे. छोटू thought he must have some shelter which will protect him from strong winds, heat, rain and cold. फिर छोटू ने सोचा कि उसके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो उसे तेज़ हवा, गर्मी, बारिश और सर्दी से बचाए. One day he saw one big sewer pipe lying in open space. एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उसे खुली जगह में एक सीवर का पाइप दिखाई दिया. He thought that the pipe could be the safest place for him to live. उस पाइप को देखकर छोटू ने सोचा कि ये पाइप तो मेरे लिए रहने की सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है. The pipe will save him from strong winds, rain and cold. The pipe now became छोटू's house. क्योंकि यह पाइप उसे तेज़ हवाओं से, बारिश से और सर्दी से बचा सकता था. इसीलिए अब से यह पाइप ही छोटू का घर बन गया. He started living there and gradually he made other parts of his house, like he arranged a drum for storing water, he made arrangement for cooking and for drying clothes. छोटू ने उस पाइप में रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने अपने घर के और हिस्सों को भी बना लिया. जैसे कि पानी रखने के लिए उसने एक ड्रम की व्यवस्था कर ली और धीरे धीरे उसने पाइप के पास ही अपने खाना बनाने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए भी व्यवस्था कर ली. One day a boy Monu also came to Mumbai like छोटू. एक दिन जिस तरह छोटू मुंबई आया था उसी तरह मोनू नाम का एक लड़का भी मुंबई आया. He also did not had any place to live. उसके पास भी रहने की कोई जगह नहीं थी. छोटू was living alone in the pipe and he did not had any friends. छोटू उस पाइप में अकेले ही रहता था और उसका कोई मित्र भी नहीं था. When छोटू saw Monu in trouble and in search of a place for living, he invited Monu to join him. जब छोटू ने मोनू को परेशान और घर की तलाश में देखा तो उसने मोनू को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया. They started staying and working together and became good friends. वो दोनों साथ रहने लगे और एक साथ काम करने लगे और जल्द ही वो अच्छे मित्र बन गए. They prepared a small shed beside the pipe where they can sit and spend some free time in talking while having tea. पाइप के बगल में ही उन्होंने एक शेड बनाई
जहाँ पर वो अपने खाली समय में बैठा करते और चाय पीते समय वहाँ पर बातचीत करते। So friends, we have seen a short story about Chotu and his friend Monu. Now we will see the questions and their answers based on this lesson. Study the pictures carefully and answer the following. दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What did Chotu think when he looked at the pipe? पाइप को देखकर छोटू ने क्या सोचा? Let us see the answer, friends. When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe will be the safest place for him to live. The pipe will save him from strong winds, rain and cold. जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने सोचा कि यह पाइप तो उसके रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। यह पाइप उसे तेज हवा से, बारिश से और सर्दियों से बचाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने पाइप का किस तरह इस्तेमाल किया? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। छोटू यूज द पाइप एज हिज होम। छोटू ने उस पाइप को अपने घर की तरह इस्तेमाल किया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? छोटू ने पाइप को और उसके आसपास के परिसर को किन हिस्सों में बांटा? Let us see the answer, friends. Chotu divided the pipe and its surrounding area into following parts. छोटू ने पाइप और उसके आसपास के परिसर को इस तरह से बांटा। A place for sleeping, सोने की जगह जिसे हम लिविंग रूम भी कह सकते हैं। A place for cooking, खाना बनाने की जगह जिसे हम किचन कहते हैं। A place for drying clothes, ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने कपड़े सुखाया करता, जैसे कि हम बालकनी में कपड़े सुखाते हैं रस्सियों पर। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर, छोटू ने एक ड्रम में पानी जमा करके रखा। अ प्लेस वेयर गेस्ट कैन सिट, ऐसी जगह जहाँ पर मेहमानों को बिठाया जा सके, इसे हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। इन सारी जगहों को आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स। इन विच पार्ट ऑफ हिज हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? छोटू को अपने घर के किस हिस्से में रहना ज़्यादा पसंद था? छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम सिटिंग इन द एरिया विच ही मेड फॉर गेस्ट्स। छोटू ने जो अपने मेहमानों के लिए बैठने के लिए पाइप के बाहर एक शेड बनाई थी, वहाँ पर बैठना छोटू को सबसे ज़्यादा पसंद था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स। Why do you think छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए क्यों बुलाया होगा? Let us see the answer, friends. छोटू invited मोनू to live with him in the pipe because मोनू did not had any place to live. छोटू was alone and he wanted someone's company. छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इसलिए बुलाया होगा क्योंकि मोनू के पास रहने की कोई जगह नहीं थी और छोटू अकेले रहता था और उसे किसी की साथ की ज़रूरत थी। Let us see the next question, friends. Now let us discuss when a house becomes a home. Friends, you can see two pictures here. Can you name which is house and which is home? Let us see the difference, friends. House. A house is a structure made up of bricks and cement walls. Home. When people or family start living in a house, then that house becomes a home. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दो पिक्चर देख सकते हैं। पहले में केवल एक मकान दिखाया हुआ है और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि मकान और मकान के साथ एक परिवार भी दिखाया हुआ है। हाउस का मतलब सीमेंट और ईंटों से बना हुआ एक मकान होता है और होम का मतलब होता है जब उस मकान में एक परिवार रहने लगता है तो वह मकान एक घर बन जाता है। Let us see the next question, friends. Draw a picture of your house in your notebook and color it. हमने यहाँ पर कुछ घर के चित्र बनाए हुए हैं। इसी तरह आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे चित्र बनाएं और उन्हें कलर करें।
Let us see the next question, friends. Who all live with you in your house? आपके साथ आपके घर में और कौन रहता है? Let us see the answer. My family members, including my grandfather, grandmother, father, mother, and my brother and sister, live with me in my house. मेरे साथ मेरे घर में मेरे परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं, जिसमें मेरे दादाजी, दादी माँ, पिताजी, माताजी और मेरे भाई बहन रहते हैं. Let us see the next question, friends. Chotu divided the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. छोटू ने अपने घर को कई हिस्सों में बांटा था. आप भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताइए. Let us see the answer, friends. The different parts of my house are living room, bedroom, kitchen, guest room, study room, bathroom and toilet. मेरे घर के विभिन्न भागों के नाम हैं लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, गेस्ट रूम, स्टडी रूम, बाथरूम और टॉयलेट. Let us see the next question, friends. How much time in a day do you spend in each part of your house? घर के अलग अलग हिस्सों में आप कितना समय बिताते हैं? Let us see the answer, friends. Living room. We spend 1 to 2 hours in living room while watching TV. लिविंग रूम में हम 1 से 2 घंटे बिताते हैं जब हम टीवी देखते हैं. बेडरूम. We spend 8 to 10 hours in bedroom. बेडरूम में हम 8 से 10 घंटे बिताते हैं जब हम रात को वहाँ पर सोते हैं. किचन. We spend half an hour in the kitchen. किचन में हम लगभग आधा घंटा बिताते हैं जब हम किचन में फ्रिज से कुछ सामान निकालने के लिए जाते हैं. स्टडी रूम. स्टडी रूम. वी स्पेंड 1 to 2 hours when we do our homework. स्टडी रूम में हम दिन में 1 से 2 घंटा बिताते हैं जब हम अपने स्कूल का होमवर्क करते हैं. बाथरूम. वी स्पेंड लेस देन हाफ आवर इन द बाथरूम while we take bath. बाथरूम में हम दिन में आधा घंटे से भी कम समय बिताते हैं जब हम नहाते हैं या मुंह हाथ धोने के लिए जाते हैं. Let us see the next question, friends. Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? क्या आपके घर में कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आपके घर का कोई सदस्य ज़्यादा समय बिताता है? Let us see the answer, friends. Yes, my mother spends more time in kitchen. हाँ, मेरी माँ किचन में ज़्यादा समय बिताती हैं. Let us see the next question, friends. Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? क्या आपके घर में कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आपके घर का कोई सदस्य बिल्कुल नहीं जाता या बहुत कम समय के लिए जाता है? Let us see the answer, friends. Yes, it is kitchen. My father never goes to the kitchen or goes for a short time. जी हाँ, किचन में मेरे पापा बिल्कुल नहीं जाते या बहुत ही कम जाते हैं. Let us see the next question, friends. You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. Let us read it. Home, sweet home. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? Look, mother, how these mice all are playing catch-catch together. And look how these mosquitoes fly. And how peaceful lies the happy spider. And look, mother, at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro. And look at so many black ants, all marching in a row. And look outside in the country yard. The birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. Friends, in the above poem,
we have seen one child is speaking to his mother about his house, and the boy tells his mother that not only we but many other invited and uninvited guests also stay in our house. I hope you liked this poem and you understood it too. Let us move ahead, friends. Draw a picture of any two animals that live in our house uninvited. Write their names below the picture. Let us see the answer, friends. Cockroach, lizard and ants. ऐसे दो प्राणियों का चित्र बनाइए जो हमारे घर में बिना बुलाए रहते हैं और उन चित्रों के नीचे उनके नाम भी लिखिए। यहाँ हमने ऐसे तीन प्राणियों के चित्र दिखाए हैं जो कि कॉकरोच, लेजर्ड यानी कि छिपकली और चींटियाँ हैं। लेट अस सी वन मोर एनिमल विच इज़ अनइनवाइटेड। चलिए और एक प्राणी का चित्र देखते हैं जो आपको पसंद आएगा। कैन यू नेम एनी अदर एनिमल दैट लिव इन आवर हाउस? क्या आप बता सकते हैं कि वो प्राणी कौन सा है? चलिए देखते हैं। वो प्राणी है स्पाइडर यानी मकड़ी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लेसन अब तक? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? क्या आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं? कैसे? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यस, वी कीप आवर हाउस क्लीन बाय। हाँ, हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं। रेगुलर क्लीनिंग विद ब्रूमस्टिक। रोज़ हम झाड़ू लगाते हैं। रेगुलर मॉपिंग ऑफ फ्लोर। रोज़ हम फर्श पोंछते हैं या फर्श पर पोंछा लगाते हैं। क्लीनिंग बाथरूम एंड टॉयलेट्स डेली। रोज़ हम अपने बाथरूम और टॉयलेट को साफ़ करते हैं। क्लीनिंग द डस्टबिन डेली। हम अपने कूड़ादान को डेली साफ़ करते हैं। वंस इन अ मंथ वी क्लीन द कंप्लीट हाउस बाय वैक्यूम क्लीनर, रिमूव कॉबवेब्स एंड रिमूव अनवांटेड थिंग्स। महीने में एक बार हम घर की वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से सफाई करते हैं, मकड़ी के जाले निकालते हैं और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हम उन चीज़ों को भी अपने घर से हटाते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स। Who all help to keep your house clean? आपको आपका घर साफ रखने में और कौन मदद करता है? मदर एंड सिस्टर ब्रूम एंड मॉप द फ्लोर। मम्मी और दीदी घर में झाड़ू और पोछा लगाती हैं। द मेड सर्वेंट ब्रूम एंड मॉप द फ्लोर। अगर आपके घर में नौकर है तो आप लिख सकते हैं कि घर का नौकर झाड़ू और पोछा करता है। All members in the family help to keep the house clean by not spreading unnecessary things and keep them back at their place after using them. घर के सभी सदस्य भी घर को साफ रखने में मदद करते हैं। वह यहाँ वहाँ सामान नहीं फैलाते हैं और काम हो जाने पर उन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस रखते हैं। During monthly cleaning, everybody contributes in cleaning the house. और महीने में जब हम घर की अच्छे से सफाई करते हैं तब सारे लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हो? लेट अस सी द आंसर, फ्रेंड्स। आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रश माई टीथ, यूज टॉयलेट। सुबह उठने के बाद मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, दांत ब्रश करता हूँ और टॉयलेट जाता हूँ। आई डू योगा और एक्सरसाइज फॉर सम टाइम विथ माई फादर एंड देन आई टेक बाथ टू गेट फ्रेशन अप। मैं अपने पिताजी के साथ थोड़ी समय के लिए योगा या व्यायाम करता हूँ और उसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? Let us see the answer, friends. We throw the garbage in the common garbage bin kept on the roadside. हम अपने घर का कूड़ा सड़क के किनारे रखे हुए बड़े कूड़ेदान में ले जाकर डालते हैं।
The sweeper collects garbage from our houses and throws in the common garbage bin. हमारे यहाँ जो सफाई वाला है वह सभी के घर से कूड़ा इकट्ठा करके सड़क के किनारे जो बड़ा कूड़ादान होता है उसमें सारे कूड़े को डाल देता है। Let us see the next question, friends. Is the area around your house clean? क्या आपके घर के आसपास का परिसर स्वच्छ है? Yes, the area around my house is clean. जी हाँ, मेरे घर के आसपास का परिसर स्वच्छ है। Let us see the next question, friends. Do you use a toilet in or around your house? क्या अपने घर और आसपास टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं? Let us see the answer, friends. Yes, I use the toilet in my house. जी हाँ, मैं अपने घर का टॉयलेट इस्तेमाल करता हूँ। Let us see the next question. Who cleans it? उसकी सफाई कौन करता है? Let us see the answer. My mother cleans it daily with the disinfector or toilet cleaning liquid. रोज़ हमारी मम्मी टॉयलेट क्लीन करती है। Let us see the next question, friends. How do you help in keeping it clean? आप उसे स्वच्छ रखने में कैसे मदद करते हैं? We all help to keep it clean by using sufficient water and flush after every use. टॉयलेट साफ रखने के लिए हम पर्याप्त पानी का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद फ्लश का इस्तेमाल भी ज़रूर करते हैं। Let us see the next question, friends. Use of toilet. This is again a short story. Let us read the story and understand it. Use of toilet. Simi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. सिमी ने बिल्लू को थोड़ा सा बेचैन महसूस किया और उसने देखा कि वह सिमी से बात नहीं कर रहा है। सिमी, बिल्लू, what happened? You look so dull. सिमी बिल्लू से पूछती है, बिल्लू क्या हुआ, तुम डरे डरे से क्यों लग रहे हो? Then बिल्लू answers, I don't know how to use the toilet properly. Hira ma'am would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. बिल्लू जवाब देता है, मुझे टॉयलेट का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है। हीरा मैम राउंड पर होंगी और वो आज भी मुझे ठीक से टॉयलेट ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। Then सिमी says, Why don't you use the toilet properly then? फिर तुम टॉयलेट का ठीक से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? Then बिल्लू answers, I am scared that I would fall in the toilet pit. बिल्लू जवाब देता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उस टॉयलेट पिट में गिर ना जाऊं। Then सिमी says, How stupid! And now I know it is you and many of our friends like you who make our toilets so dirty by not using the toilet properly. सिमी कहती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो और अब मुझे पता चला कि वह तुम ही हो और तुम्हारे जैसे हमारे मित्र जो टॉयलेट का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसे गंदा कर देते हैं। डोंट बी स्केर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल। डरो मत, जिम्मेदार बनो। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। चलिए हम देखते हैं कि हम जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली। सही तरीके से बैठकर टॉयलेट का ठीक से इस्तेमाल करें। ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज़। टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद हमेशा फ्लश का उपयोग करें। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली। अपने आप को स्वच्छ करें। वॉश योर हैंड्स थॉरोली। अपने हाथों को अच्छे से धो लें। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। अपने स्कूल के टॉयलेट एरिया के बारे में बताइए। वी हैव 2 separate toilets for boys and girls on every floor. The toilets are at one corner of the building. हमारे स्कूल में हर फ्लोर पे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट है। बिल्डिंग के एक कोने में टॉयलेट बनाए हुए हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स। इज़ इट क्लीन? क्या वह टॉयलेट स्वच्छ होते हैं? यस, इट इज़ क्लीन। हाँ, वह स्वच्छ होते हैं।
Who cleans it and how? उन्हें कौन साफ करता है और कैसे? The housekeeping staff sweeper available in the school cleans the toilets daily by using toilet cleaning liquid. जो हाउसकीपिंग स्टाफ और सफाई वाले कर्मचारी है वह स्कूल के टॉयलेट्स को डेली साफ करते हैं. Let us see the next question friends. How do you help in it? इस काम में तुम उनकी कैसे मदद करते हो? We help to keep it clean by using it properly and using flush after every use. हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके और यूज़ करने के बाद फ्लश कर उसे साफ रखने में मदद करते हैं. Let us see the next question friends. Do you leave the toilet as clean as you want it for yourself? क्या तुम टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे छोड़ते हो जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले? Yes, I use the toilet properly and leave it clean as I want it for myself. हाँ, मैं टॉयलेट का सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ और उसे ऐसे ही स्वच्छ छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले. Let us see the next question friends. Enlist the times when you wash hands. तुम अपने हाथ कब कब धोते हो? Let us see the answer friends. I wash my hands after using toilet. मैं अपने हाथ टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद धोता हूँ. Before and after every meal. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद धोता हूँ. After coming back home from outside or school. बाहर से या स्कूल से घर लौटने पर मैं अपने हाथ धोता हूँ. After playing outside in the ground. बाहर से जब मैं खेल कर लौटता हूँ तब मैं अपने हाथ धोता हूँ. Let us see the next question friends. When do you think your hands get dirty? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ कब खराब होते हैं? My hands get dirty after using toilet. मेरे हाथ टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद ख़राब होते हैं. आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड इन द ग्राउंड. बाहर मैदान में खेलने के बाद मेरे हाथ ख़राब होते हैं. आफ्टर रिमूविंग शूज़. अपने जूते निकालने के बाद मेरे हाथ ख़राब होते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो राइट आफ्टर ईटिंग फूड. खाना खाने के बाद भी मेरे हाथ ख़राब होते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. हाउ डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन? तुम्हें अपने आप को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए? Let us see the answer friends. We need to keep ourselves clean by bathing and brushing teeth. हमें अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए नहाना और दांत साफ करना चाहिए. Clipping the nails regularly. जब हमारे नाखून बड़े हो जाए तब हमें उन्हें नियमित रूप से काटना चाहिए. Wearing clean clothes after bath. नहाने के बाद हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए. वॉशिंग आवर हैंड्स एज सुन एज दे गेट डर्टी. जब भी हमारे हाथ खराब हो जाए तो हमें हाथ को धो लेना चाहिए. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट डू द अबाउ? क्या होगा अगर आप ऊपर वाली बातें ना करें? इफ़ यू डोंट कीप आवर सेल्फ क्लीन बाय डूइंग अबाउ वी कैन फॉल इल ड्यू टू पुअर हाइजीन. अगर हम ऊपर बताई गई बातें ना करें तो हम साफ सफाई ना होने के कारण बीमार पड़ सकते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. डिड यू नो फॉर गांधीजी's 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड. इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या आप जानते हैं गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी. स्वच्छता हम सब की ड्यूटी और जिम्मेदारी है. इस बात का हमें ज्ञान दिलाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लुक हाउ ब्यूटिफुली लता's हाउस इज डेकोरेटेड. व्हाट डिड यू नोटिस इन द अबाउ पिक्चर? इस चित्र में आप देख सकते हैं कि लता के घर को कैसे सजाया हुआ है. इस चित्र में आपने क्या देखा? लेट अस सी द आंसर फ्रेंड्स. वी कैन सी द हाउस इज डेकोरेटेड लाइक इट इज़ अ फेस्टिवल.
Let us see the next question, friends. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? क्या आप अपने घर को खास तरीके से सजाते हैं? कब और कैसे? Let us see the answer, friends. Yes, on the occasion of festival, we decorate our house in special way. Like for Diwali, we decorate our house with colorful lights and with rangoli. जी हाँ, त्योहार के समय हम अपने घर को खास तरीके से सजाते हैं। जैसे दिवाली के समय अपने घर को सजाने के लिए हम रंग बिरंगी लाइट्स का और रंगोली का इस्तेमाल करते हैं। Let us see the next question, friends. Ask your friends when and how they decorate their house. अपने मित्रों से पूछिए कि वो अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। Let us see the answer, friends. My friends also decorate their houses during festivals like Diwali, Christmas, Eid, Sankranti, Lohri, Durga Puja, Navratri, Onam and Pongal, etc. मेरे मित्र भी त्योहार के समय अपने घर को खास तरीके से सजाते हैं, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, ईद, संक्रांति, लोहरी, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ओणम और पोंगल इत्यादि। They decorate their house by colorful lights, lighting diyas, using torans for doors and draw traditional rangoli in front of the house. वह अपने घर को सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं, दरवाज़ों पर तोरण लगाते हैं और घर के सामने रंगोली बनाकर घर को सजाते हैं। Let us see the next question, friends. Name the things with which you decorate your house. जिन चीज़ों से तुम अपने घर को सजाते हो उन चीज़ों के नाम बताओ। Let us see the answer, friends. The things we use to decorate our house are flowers, rangoli, wall hangings and torans, paintings, fancy lights, flower pots, etc. जिन चीज़ों का हम अपने घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हैं फूल, रंगोली, वॉल हैंगिंग, तोरण, पेंटिंग्स, खूबसूरत लाइट्स और फूलदान। Let us see the next question, friends. Why do we need a house to live? हमें घर की ज़रूरत क्यों है? We need a house to live because it protects us from strong winds, rain, heat and cold. It also protects us from wild animals. हमें घर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो हमें तेज़ हवा, बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाता है। घर हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है। Let us see the next question, friends. Write how many different types of houses you have seen and name them. आपने किस तरह के घर देखे हैं उनका नाम बताइए। Let us see the answer, friends. You might have seen kacha house, which is made up of straws. You might have seen pakka house and a hut. आपने कच्चा घर, पक्का घर और झोपड़ी देखी होंगी। Let us see the next question, friends. Do animals also build house? Give some examples. क्या प्राणी भी घर बनाते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। Let us see the answer. Yes, animals also make houses for their protection. जी हाँ, प्राणी भी अपने सुरक्षा के लिए घर बनाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। Let us see some examples. Bird's nest, पक्षी का घोंसला, beehive, मधुमक्खी का छत्ता, rat hole, चूहे का बिल। You can see how the rat is hiding from a cat. Isn't it funny, friends? If you like this picture, hit the like button, comment and tell me. Lion's den, शेर की गुफा। Ant's nest, चींटियों का बिल। आपने देखा होगा चींटियाँ भी ऐसे अपना घर बनाती हैं। Let us see the final picture. Rabbit hole, खरगोश का बिल। Friends, if you are new to our channel and
you have not subscribed our channel, do subscribe, and if you like this video, don't forget to like and share. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।